Prasantam Shukrana Guruji for blessing us with this beautiful seva of reading and listening to the Shivpuran. Last week we read chapter 6 and 7 of Rudra Samhita, section 5. In this we read that deluded by Arihad and Narada, I would wait for everyone to leave. Deluded by Arihat and Narada, the king of Asuras, his brothers, as well as the citizens of the three cities, they abandoned the worship of Lord Shiva. Now this brought contentment to Vishnu, who had planned all this, and Vishnu along with other gods then went to Kailasha to inform Lord Shiva about it. So when the gods told Lord Shiva that or the ruler as well as his brothers and the citizens of the cities had abandoned his worship and they had adopted Buddha religion as well as they had eschewed all Vedic rites, Lord Shiva did not seem surprised. Rather, he told all the gods that he was aware of the ways by which Vishnu and Narada deluded these asuras into abandoning Lord Shiva's worship. So he could not kill them unless they continue to perform these evil activities. Hearing this, the gods were a little dejected, and then Shiva told Vishnu to slay the asuras. This also dispirited Vishnu, and then Brahma intervened. Brahma told Lord Shiva that he was the emperor of all gods and that he must continue to support the gods and help them in this task. So to this, Lord Shiva told Brahma that he did not have any characteristic that of an emperor. He did not have a divine chariot, he did not have a divine charioteer, he did not have bows and arrows that could accord victory. So hearing this, and if he did have that, he would kill the asuras. So hearing this, all the gods, including Brahma and Vishnu, they were all delighted, and they told the god that they will make all the necessary arrangements for all these things. In the meantime, Parvati walked in along with her two sons, and all the gods bowed down in front of goddess Parvati, and seeing them, Lord Shiva was delighted, and he went up to kiss Skanda's forehead. And now gods, as they bowed down, they did not know the reason of Parvati's arrival, and soon Lord Shiva went into his mansion along with Parvati and Nandin. Now all the gods were standing at the doorway of Shiva's mansion, and they were worried, and just then Kumbodhara, who was one of the attendants of Lord Shiva, came there and started beating the gods and sages with a baton. Now these distressed gods ran up to Brahma and Vishnu and told them what had happened with them. To this, Vishnu and Brahma suggested these gods to propitiate Lord Shiva by reciting the mantra Om Namah Shivaya Shubham Shubham Kuru Kuru Shivaya Namah Om, and recite this mantra at least 1 crore times and propitiate Lord Shiva. For the fulfillment of task of gods, Brahma and Vishnu themselves started reciting this mantra and performing the japa of this mantra. This delighted Lord Shiva, and he appeared in front of them and asked them to ask for a boon. Now the gods unanimously requested Lord Shiva to destroy these three cities, and Shiva agreed to it, and then he told Vishnu to make all the necessary arrangements, like he asked for a divine chariot, divine charioteer, and bows and arrows that could accord victory. At his bidding, Vishwakarman built a divine chariot, a very special chariot. Detailed description of all these we will be reading in today's chapter, which is chapter 8, the detailed description of the divine chariot, etc. Today, Reema Auntie will be reading in English, and we also have Hindi reading. We will be reading one chapter, which is a summary of chapter 6, 7, 8 in English. So Sneh Auntie will be reading that chapter in Hindi for us. If anybody is interested in reading the Shivpuran, you can reach out to Seema Auntie or Rashmi Auntie or me. For now, enjoy the reading. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji for the blessed seva. Chapter 8, the detailed description of the chariot, etc.
Vyasa said, O Sanat Kumara of good intellect, O omniscient one, O foremost among the devotees of Shiva, this wonderful story of Lord Shiva has been narrated to us. Now please mention the structure of the chariot, which consisted of all the gods and which had been made by the intelligent Vishwakarma. Sutta said, on hearing these words of Vyasa, Sanat Kumara, the great sage, remembered the lotus-like feet of Shiva and spoke thus. Sanat Kumara said, O sage Vyasa, of great intellect, listen to the description of the structure of the chariot, etc., which I shall give to the extent of my intellect after remembering the lotus-like feet of Shiva. The divine chariot of Lord Shiva, consisting of all the worlds, was built by Vishwakarma with devoted effort. It was appreciated by all. It was golden in color, and all the elements had gone into its making. The right wheel was the sun, and the left wheel was the moon. The right wheel had 12 spokes, O great Brahmin. The 12 Adityas presided over them. The left wheel had 16 spokes, O you of excellent rights. The 16 spokes of the left side wheel consisted of the 16 digits of the moon. All the asterisms embellished the left side. The 6 seasons constituted the rims of the wheels of the chariot. O great Brahmin, the pushkar of the chariot was the sky. The inner side of the chariot was Mandara. The rising and the setting mountains constituted the pole shafts. Mahameru was the support, and the Kesar mountains the sharp sides. The ear constituted its velocity. The two ayanas, northern and southern, constituted the junctions of the wheels and axles. The muhurtas constituted the joints, and the kalas the pins of the yoke. The division of time, kasta, constituted the nose of the chariot, and the zanas the axle shaft. The nimesas constituted the bottom of the carriage, and the minutest divisions of time constituted the poles. The firmament constituted the fender of the chariot, heaven and salvation the flagstaffs. Abramu and Kamdenu constituted its harrows at the end of the shafts. The unmanifest principle formed their shaft, and cosmic intellect the chariot's reeds. The cosmic ego cosmic corners, the elements and elements its strength. O excellent sage, the cosmic sense organs constituted the embellishments of this chariot on all sides. Faith was its movements. The 6 Vedangas were its ornaments. O great ones of good rights, the Puranas, Nyaya, Mimamsa, and Dharma, Shastra constituted the side trinkets. The forceful and excellent mantras, with their syllables and feet of all characteristic features, and the stages in life constituted the tinkling bells. Ananta, embellished with 1,000 hoods, constituted its fittings, and the main and subsidiary quarters the pedestals of the chariot. The clouds, Pushkar, and others constituted the gem-studded banners of glowing colors. The 4 oceans are remembered as the bullocks of the chariot. Ganga and other rivers, shining in excellent female forms and decorated in all ornaments, held the kamaras in their hands. Taking up their places in the different parts of the chariot, they brightened it up. The 7 courses of the wind, Avaha, etc., constituted the excellent steps of gold leading the chariot. The Lokaloka mountain formed its side steps. The lake Mansa, etc., constituted its brilliant outer and oblique steps. The Varsha mountains constituted the cords and chains all round the chariot. All the residents of the region Tala constituted the bottom surface of the chariot. Lord Brahma was the charioteer. The gods were holders of the bridle. Pranav, the Vedic divinity, constituted the long whip of Brahma. The syllable constituted the great umbrella. Mandara, the side staff. The Lord of mountains became his bow, and the Lord of serpents the bowstring. Goddess Saraswati, in the form of the Vedas, constituted the bells of the bow. The brilliant Vishnu became the arrow, and Agni the spearhead. O sage, the 4 Vedas are said to be his horses. The remaining planets became their embellishments.
His army came up from water, the winds were his feathers, wings, etc. Vyasa and other sages were the drivers of the vehicle. O great sage, why should I dilate? I shall succinctly say, everything in the world found a place in the chariot. At the bidding of Brahma and Vishnu, the chariot and its adjuncts were created by the intelligent Vishwakarma. Jai Guruji, we complete chapter 8. Sneha Aunty will be reading in Hindi. Jai Guruji, Shukrana Guruji. जय गुरु जी। I don't know which one is that. 364. 364. I'm sorry. Jai Guruji. Shukrana Guruji give me the opportunity to read the Shivpuran. I'm going to read the five. देवों का शिवजी के पास जाकर उनका स्तमन करना, शिवजी के त्रिपुर वध के लिए उदत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब शिवजी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सरदेव में रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनंत कुमार जी, जब भाइयों तथा प्रवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहछन हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभो, वो सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। संतन कुमार ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वक तक्षा हो गई, दैत्यों ने शिव निवाचन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से स्वप्न हैं, आप इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और सरदारुद्र हैं। पर ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। यूँ महादेव जी का स्तमन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन प्रणाम करके तन्य महादक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रगट रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ों की संख्या जप किया, जब तक सभी देवता उन माहेश्वर मन लगाकर ही उनकी स्थिति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। आप सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के बंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप अनादि भी हैं। आप ही अनंत स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सत्गुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और सहारक बनते हैं। आप इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, ब्रह्मंग स्वरूप, वेद प्रतिपाद और वाच्य विचकता से रहित हैं। योग देता योगी, आप ईशान से मुखों की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप ब्रह्मा स्वरूप, तत्व रूप, तेजोरशी और प्रतापर हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वमात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वो आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तमन करने तथा जानने योग बताया जाता है, जो अंगों से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वो आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान नाक वाले हैं, अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिन, आप स्वर्ग, सर्वेश्वर, अनावर्त और विश्व रूप हैं। आप विप्राक्ष को सब ओर से अभिवादन करते हैं।
आप सर्वेश्वर, भवादक्ष, संतमय, कल्याणकर्ता, अनूपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विशारद, आदि, अंत शून्य, विश्व तत्व, नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रवक्तामय और सब शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता, विकजन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला, संभु और त्रुटित्वक बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्याय सतावर जगम श्री आपकी स्तुति करते हैं। शंभो, त्रिवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, तो आप शीघ्र ही उन असुरों का निवास करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव बल्लभ, हम देवों के एक बात आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय में आपकी माया से मोहित हो गए हैं। तो हे प्रभु, हे भगवान विष्णु द्वारा बताई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारे सौभाग्यवंश, इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया, नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। आप अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिवार, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्थिति की और विष्णु ने शान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए। संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, देवरेश, उन अर्ध नष्ट दैत्यों को, तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त हैं और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता है। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याज वंश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया, तथापि क्या मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्मवश करके मेरी भक्ति से मुक्त कर दिया, वे विष्णु अथवा अन्य कोई नहीं मारते। मुनीश्वर, शंभु के ये भजन सुनकर उन समस्त देवताओं तथा श्री हरि का मन उदास हो गया। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग्यताओं में शेष पर ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य उन्हें अपने धर्म का परित्याग कर दिया, वो आपकी भक्ति से विमुख हो गए, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेशों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मसार पापियों का वध करने में पाप नहीं लगता, इसलिए कांटों को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा, यदि आप अपने राज तथा स्वर्ग लोगाधिप को स्थिर रखना चाहते हैं, तो उसे अपने राज में अनंतर भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवादेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शुक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास ब्रह्मा की ये बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्रह्म, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हैं, तो मेरे पास उस पद के योग कोई ऐसी सामग्री नहीं जिसे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी है, और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयुग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वो चुप हो गए, परंतु शिवजी को शीघ्र
प्रस्तुत होते न देखकर नमस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तो भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि मधाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति दृढ़ता देखकर इष्ट देव वश प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके, फिर नमे का प्रयोग करके, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुंभव का उच्चारण करें। उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुंभम शुंभम कुरो कुरो निवाय नमः ओम ये मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुण्य 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करोगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा, तब सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवत तथा मुनियों की कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधिपूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनिशेष इधर देवगण धैर्य स्वप्न हो बार बार शिव 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 उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वात स्वर धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया। अब तुम लोग अपना मन वांछित पर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादि देव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने सदा हम देवताओं की बारंबार पतियों की रक्षा की है, इतना समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की बात सुनकर शिव जी मन मन प्रसन्न हुए। पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, और त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया, वो सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रत्ययपूर्वक सम्राट के योग सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्यों में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए ये कार्य अवश्य करो। ये शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। ये भक्ति भक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए अनंत प्रद है। वो स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। ये निष्काम के लिए मोक्ष साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता सुनता है अतः दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी कहते हैं, सुनो, परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को विशेष आनंद प्राप्त हुआ। इस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। जय शंकर शिव जी भोलेनाथ। जय गुरु जी।